So today's topic, which is organ of sight or vision, is called a photoreceptor also. And at the same time, we have to discuss, mainly we'll focus on here structure of eye. So the eye is an organ of sight. It is an organ of sight, and there is a pair of eyes. A pair of eyes. A pair of eyes are present in the eye sockets or orbits. So that means if you see that, if we just see the skull, and in skull we find the two orbits, or we can call them as the eye sockets. And these eye sockets, they hold this, there is a pair of these sockets present in the skull, in the facial region, and particularly, these specialized structures, they play an important role accommodating the eye in this area. And then we see that eyeball is containing the fat around it. That's called orbital fat. Orbital fat surrounds it surrounds the eyes, and this acts as displaying an important role in acting as a shock absorber. Mechanical shock absorber का काम करता है ये. So I would like to again repeat that, the eyes are actually the photoreceptors organs, and they are also called as organs of sight. So there is a pair of the eyes, and they play an important in perception of the various kinds of the visuals. And, perception of the various visuals, so we can call it as a photoreceptor. And this eye plays an important role in seeing the things in the visible portion of the spectrum, which is ranging from 390 to 760 nanometers. And the function of this organ is to take the images to the retina or to brain. And the center for the vision is located on the occipital cortex, and that center plays an important role in identifying the various kinds of the visuals. And that is on the occipital. Occipital is the part of the brain where the two optic nerves. The optic nerves are the nerves which carry the information of the vision or visuals to the occipital part of the brain, and it's on the center for the vision is present on the occipital part of the brain. And here our brain has an experience of reading the various kinds of the images. And so basically, this eye is an organ of sight, and there are pair of eyes present in the sockets, also called eye sockets or orbits, which are present in the skull. And these between the eyeballs, because an eye is a ball-like structure between the eyeballs and the bones of the orbits. And there are two bones, one's ethmoid and sphenoid. They accommodate these eyeballs, and between the bony part and the eyeballs, there's a fat, the pads of the fat, and they act like the cushion. And these cushion-like structures play an important role in acting as a mechanical shock absorber. So this fat acts like a cushion, and it acts as a mechanical shock absorber. So इसीलिए जो अगर आप देखेंगे हर एक जो दोनों किस्म की आंखें जो होती है बॉल जैसी होती है, उसको आई बॉल भी कहा जाता है. और ये इस सॉकेट में, यानी कि आप हड्डियों और आईबॉल के दरमियान एक फैट की लेयर लगी होती है, जिसको हम ऑर्बिटल फैट का नाम देते हैं. और ऑर्बिटल फैट जो है ये मैकेनिकल शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है. और आईबॉल जो हमारे पास जो आई जो है, इसका जो आईबॉल का साइज होता है, वेट जो होता है, एक आई का जो वेट होता है वो लगभग 7 ग्राम तक होता है. और इसका जो डायामीटर होता है, बात समझेंगे, it is round about 2.5 centimeters. .5 centimeters the weight of the eyeball. Each eyeball is having a 7
grams of the weight, and this it weighs about 7 grams of the weight, and its diameter is 2.5 centimeter. और अगर आप देखेंगे the eyeballs in the in the sockets or in the orbits, they're protected by the sphenoid and ethmoid bones. So इसी तरह से अगर आप बाहर से देखेंगे एक्सटर्नली अब आपको बाहर से जो दिखता है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखता है, देखिए ये वाला जो आई का पोर्शन है, externally the eyes are protected by the eyelids. Externally you see that there are each eyes externally. अगर हम देखेंगे बाहर से, अगर हम देखेंगे बाहर से जो आपको ये पिक्चर इस वक्त नजर आ रही है, इसमें आपको लग रहा है कि जो हमारी आई बॉल होती है ये बाहर से प्रोटेक्टेड होती है इन द ऑर्बिट. पहले हमने कहा कि स्फेनॉइड और इथमॉइड बोन से, लेकिन एक्सटर्नली आपको कैसे प्रोटेक्ट नजर आ रही है? एक्सटर्नली आईज आर प्रोटेक्टेड बाय पेयर ऑफ एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड by palpebrae. So weight of an eyeball is measuring about 7 grams, and the diameter of eyeball is 2.5 centimeters, and externally it is it remains in the sockets, well protected in the sockets with ethmoid and sphenoid bone, as also called as a backbone, ghost bone, or so. But remember, externally जो आपको बाहर से दिख रहा है, जहां मैंने ग्रीन लाइनिंग की, तो आपको पता है यहाँ से जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आईलिड, और ये आईलिड जो है इसको एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करता है. एक्सटर्नली इसको ये आईलिड प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. और द आई बॉल इज एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड बाय द eyelids के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेक्टेड बाय द eyelids, और आल्सो कॉल्ड एज अ palpebrae. इनको यानी eyelids के लिए आप इस्तेमाल करेंगे सुपीरियर एंड इंफीरियर, यानी ऊपर का जो है पाल्पेब्रा होता है और नीचे का, तो इन दोनों को कलेक्टिवली पाल्पेब्रे का नाम दिया जाता है. क्लियर? और इसी तरह से अगर आप देखेंगे आंख को जो eyelids और आई ब्रोज जो होती है, so a pair of eyelids and a pair of eyebrows जो होती है, externally eyes are protected by a pair of eyelids and eyebrows, and glands भी होते हैं इसके. बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे glands are present for the smooth working. तो आंखों को जो है स्मूथ वर्किंग के लिए जो ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं. और जो अंडरस्टैंड करेंगे आप, so glands are present for their smooth working. और आप अंडरस्टैंड करेंगे जो हमारी आई होती है, इसको अगर हम ये आईलिड सारा उठा देंगे तो हमें एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, और वो बॉल जैसा स्ट्रक्चर मैं आपको अभी दिखाऊंगा. और उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको मसल्स के उसके ऊपर जो है बहुत सारी मसल्स होती है. और अगर आप देखेंगे आंख के ऊपर जो मसल्स होती है, यहाँ पर आई की जो मसल्स होती है, एक हमारे पास जो मसल्स आई के साथ एसोसिएटेड होती है वो दो किस्म की होती है. एक मसल्स को कहा जाता है रेक्टस मसल. तो अंडरस्टैंड करेंगे रेक्टस मसल्स होती है बिकॉज ग्लैंड्स भी आंख पे पाए जाते हैं, उनके भी अपने अपने फंक्शंस होते हैं, मगर वहां पर कुछ स्ट्रैप जैसी मसल्स होती है. उन स्ट्रैप जैसे मसल्स जो है होल्ड द आईज इन इट्स सॉकेट्स एंड प्रोवाइड देयर provide its movement in various directions, and there are 4 types. तो इन मसल्स को रेक्टस मसल्स का नाम दिया जाएगा. और दो तो रेक्टस और हमारे पास ओब्लिक मसल होते हैं, रेक्टस एंड ओब्लिकस. तो ओब्लिक जो है ये वाली जो मसल्स होती है, रेक्टस जो है, रेक्टस की मसल जो होती है ये आप याद रखेंगे, एक रेक्टस इंफीरियर होता है, दूसरा रेक्टस सुपीरियर होता है, मीडियल लेटरल सुपीरियर
मीडियल सुपीरियर एक मसल जो है रेक्टस मसल में आपको अभी दिखाऊंगा। एक रेक्टस मसल है सुपीरियर, मीडियल है, लेटरल मसल है और अंडरस्टैंड करेंगे इंफीरियर मसल भी होती है। सुनेंगे यहाँ पर सुपीरियर रेक्टस मसल जो होती है, मीडियल रेक्टस मसल और लेटरल और इंफीरियर मसल भी होती है। तो ये चार किस्म की रेक्टस मसल्स होती है। ये स्ट्रैप शेप्ड मसल्स होती है और ये स्ट्रैप शेप्ड मसल जो होती है ये आई बॉल की जो मूवमेंट होती है उसको जो है मदद करते हैं। और ये चार किस्म की होती है, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड लेटरल एंड इंफीरियर एंड टू ओब्लिक। सुपीरियर एंड ओब्लिक जो होते हैं, दो ओब्लिक की दो है। सुपीरियर ओब्लिक होता है और इंफीरियर ओब्लिक होता है। superior oblique muscle, superior oblique muscle and inferior oblique muscle. Inferior oblique muscle and superior oblique muscle and inferior oblique muscle. तो याद रखेंगे ये आई बॉल के साथ जो चार मसल्स जुड़ी होती है मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। सुपीरियर इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस एंड मीडियल रेक्टस होती है और उसके बाद हमारे पास जो है ओब्लिक मसल्स होती है, सुपीरियर ओब्लिक एंड इंफीरियर ओब्लिक। सारी मसल्स यहाँ पर विजिबल है और ये आई बॉल को मूव कराने में काम आती है। और उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ, अब आई को, हमारा जो आई है इसमें हमारे आई के तीन पार्ट होते हैं। आज मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑर्गन ऑफ साइट होता है आई, और आई बॉल जो होती है ये सॉकेट्स में पाई जाती है, बोनी सॉकेट्स में, जो टेम्पोरल और जो जिस सिफेनॉइड और इथेमॉइड बोन से बनी होती है। वो सॉकेट जो है ऑर्बिट जो होता है उसमें इथेमॉइड और सिफेनॉइड जो सपोर्ट करती है। और आई बॉल और बोन्स के दरमियान एक फैट पाया जाता है, उसको ऑर्बिटल फैट का नाम दिया जाता है। वो मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और आंखों का काम होता है देखना और विजुअल्स को ये पहुंचाते हैं। रेटिना पर जो विजुअल्स आ जाते हैं, ऑप्टिक नर्व उनको ब्रेन की तरफ भेजती है। सो ब्रेन पे पहुंचती है तो ब्रेन के उस सेंटर पे जिसका नाम ऑक्सीपिटल है वहां पर इनको प्रोसेस किया जाता है। और उसके अलावा आई का वजन जो है 7 ग्राम होता है, 2.5 डायमीटर होता है, एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड बाय पाल्पेब्रे या आईलिड्स। और सुपीरियर और इसके पास जो स्ट्रैप शेप्ड मसल्स होते हैं जिनको हमने रेक्टस मसल्स या ओब्लिक मसल्स का नाम दिया। और ओब्लिक मसल्स जो है, रेक्टस मसल चार किस्म की होती है, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस एंड इंफीरियर रेक्टस। एंड ओब्लिक मसल सुपीरियर ओब्लिक मसल और इंफीरियर ओब्लिक मसल होती है। यह आई बॉल को मूवमेंट में मदद करती है। और जो आई बॉल आपको नजर आ रही है, आई बॉल, आई बॉल जो है अंडरस्टैंड करेंगे इस तरह से। इसके सबसे बाहर वाले लेयर को, क्योंकि मैंने यहाँ ब्लैक से बना दिया, सबसे बाहर वाली लेयर को, आई बॉल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको कहा जाता है ट्यूनिका फाइब्रोसा। उसके बाद जो ब्लड सप्लाई इसकी बनाती है उसको ट्यूनिका वैस्कुलोसा कहा जाता है, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। और जो आखिरी वाली लेयर होती है इसका जो है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका ट्यूनिका नर्वोसा। याद रखेंगे हमारे पास जो है ट्यूनिका फाइब्रोसा एक लेयर है, फाइब्रस लेयर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जो बाहर वाली लेयर है। उसके बाद ट्यूनिका वैस्कुलोसा जो है, जो यहाँ वाली लेयर होगी। और उसके बाद सबसे अंदर वाली लेयर जो होगी
जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम तो ये दूसरी लेयर है आई की, जिसको हम ट्यूनिका फाइब्रोसा का नाम देते हैं, यहां से आप देख सकते हो। और उसके बाद अंदर वाले हिस्से को जो है उसको हम ट्यूनिका नर्वोसा का नाम देते हैं, इस तरह से। तो 3 लेयर्स है यहाँ पर, ट्यूनिका नर्वोसा जो है 3 लेयर्स, यानी कि आई के जो स्ट्रक्चर में आपको 3 किस्म के लेयर्स मिलेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक आई बॉल बना दिया, और आई बॉल को सिर्फ टेम्पोरली ये समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बना दी, ताकि आप इसमें देख सकते हैं कि ये बॉल है। और इस बॉल को जब हम देखते हैं, सेक्शन काट के देखते हैं, तो हमें सबसे बाहर वाली एक लेयर नजर आती है, और सबसे बाहर वाली लेयर जो नजर आती है उसको हम फाइब्रस ट्यूनिक बोलते हैं। और दूसरी लेयर जो है जिसमें ब्लड सप्लाई होती है उसको हम ट्यूनिका वास्कुलोसा का नाम देते हैं। और तीसरा जो है सबसे अहम जो अंदर वाली लेयर होती है, जो नर्वस लेयर होती है, उसको ट्यूनिका नर्वोसा का नाम दिया जाता है। अगर कहा जाए तो पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इफ वी टेक, दैट्स अ फाइब्रस कोट और फाइब्रस ट्यूनिक। फाइब्रस कोट जो और फाइब्रस ट्यूनिक जो होता है, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, जिसको ट्यूनिका फाइब्रोसा भी कहा जाता है। ट्यूनिका फाइब्रोसा भी इसको कहा जाएगा। और ट्यूनिका फाइब्रोसा जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ऑफ आई बॉल। ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आई बॉल है, और इट इज मेड अप ऑफ, किस मटेरियल का बना होता है? डेंस फाइब्रो इलास्टिक, डेंस फाइब्रो डेंस फाइब्रो इलास्टिक जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आप अंडरस्टैंड करेंगे, ये जो है ये फाइब्रस ट्यूनिक जो होता है, फाइब्रस ट्यूनिक इज नॉन नर्वस। फाइब्रस ट्यूनिक जो है नॉन नर्वस होता है, और इसके 2 लेयर्स होते हैं। और अंडरस्टैंड करेंगे इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फाइब्रस ट्यूनिक जो है अंडरस्टैंड करेंगे, हमने फिर से बताया आपको, आई बॉल के 3 हिस्से होते हैं। अगर हम देखेंगे बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, तो सबसे बाहर वाली लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका फाइब्रोसा, या फाइब्रस ट्यूनिक भी इसको बोलेंगे। और ये आपको पता है व्हाइट डेंस व्हाइट टिश्यू यानी कि फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू से बना होता है, डेंस फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू से बना होता है। और फाइब्रस ट्यूनिक जो होता है ये नॉन नर्वस होता है। और इसके अंडरस्टैंड करेंगे, इसके जो हमारे पास ये 2 पार्ट्स मौजूद होते हैं। देखिए, एक हमारे पास इसका जो है सफेद वाला हिस्सा जो है पूरा व्हाइट वाला हिस्सा, व्हाइट वाले हिस्से के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है सिक्लीरा या सिक्लेरोटिक लेयर। हमारे पास जो है सबसे बाहर वाला लेयर हम ले रहे हैं, जिसको हमने कहा व्हाइट ऑफ जो फाइब्रस ट्यूनिक है। फाइब्रस ट्यूनिक के 2 हिस्से हमने कर दिए, आराम से समझेंगे। फाइब्रस ट्यूनिक के 2 हिस्से हमने कर दिए। एक है सफेद रंग का, सफेद रंग का जो आपको नजर आता है उसको हम बोलते हैं सिक्लरा या सिक्लेरोटिक लेयर। और उसके बाद जो हमारे पास आगे वाला जो है, यानी ये सिक्लीरा कितना बनाता है, आप में से आप याद रहेंगे, सिक्लीरा जो है हमारे पास जो है आई का जो है ये बहुत बड़ा हिस्सा आई का बनाता है, या 5/6 पार्ट जो हम बोलेंगे। फाइव सिक्स पार्ट ऑफ आई। और वाइट जिसको हम सिक्लेरा बोलते हैं, ये देखिए सिक्लेरा को मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर लूंगा। अब सिक्लेरा व्हाइट वाले हिस्से को कहा जाता है सिक्लेरा। और
अगर हमारे पास दूसरा पार्ट जो इसका होता है उसको कॉर्निया का नाम दिया जाता है। कॉर्निया, तो कॉर्निया जो है ये देखिए, कॉर्निया ये 1/6 पार्ट होता है। वन सिक्स पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड एज ए कॉर्निया। और अब देखिए, आप आराम से सुनिए, सफेद वाला रंग जो है उसको हमने नाम रखा सिक्लेरोटिक लेयर, और आगे जो 1/6 पार्ट है, और सफेद वाला लेयर 5/6 पार्ट ऑफ आई होता है। आई बॉल का जो 5/6 पार्ट होता है, ये बाहर वाले हिस्से में, उसको हमने नाम रखा सिक्लेरा। और जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया सिर्फ आगे पाया जाता है, 1/6 पार्ट ऑफ आई में कॉर्निया पाया जाता है। 1/6 पार्ट ऑफ आई में जो है कॉर्निया पाया जाता है। अगर हम यहां से बात करेंगे पहले, तो सफेद रंग जो है, जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बना दूंगा, अच्छी तरह से समझें आप। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, देखिए यहां पर तो इसलिए जो है यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे आंख के इस वाले हिस्से को, जो है ये सफेद रंग का जो हिस्सा है, तो ये देखिए, ये वाला जो लेयर है, ये वाला लेयर जो है सारे का सारा जो है, ये सारे का सारा लेयर जो है, पहले इस सारे को सारे लेयर को यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये सारे का सारा जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सिक्लेरा। सिक्लेरोटिक लेयर जो है, ये सिक्लेरोटिक सफेद लेयर जो है सिक्लेरोटिक लेयर है। देखिए यहां से लेकर यहां तक जो मैंने ड्रॉ किया, यहां से लेकर यहां तक, इस तरह से एक्सट्रीम में जो सफेद सफेद रंग का है जो सारा, तो ये सफेद रंग जो है सिक्लेरोटिक लेयर होती है। और उसके बाद जो आगे वाला ये वाला हिस्सा है, मैं इसको थोड़ा सा रंग दे दूंगा। ये वाला हिस्सा जो बचता है, इस वाले हिस्से को हमने नाम रखा, इस वाले हिस्से में हमने नाम रखा कॉर्निया। कॉर्निया, तो अंडरस्टैंड करेंगे कॉर्निया क्या है और सिक्लेरोटिक लेयर क्या है, ये आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं सिक्लेरोटिक लेयर जो होते हैं, सिक्लेरा। तो बताओ सिक्लेरा किसको बोलते हैं? सिक्लेरा इज एक्चुअली इज द 5/6 पार्ट ऑफ द आई, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ द fibrous connective tissue, and that's actually a dense white type of the connective tissue. It covers the posterior 5/6 part of the eye। और सिक्लेरा में ब्लड सप्लाई भी जो होती है, और it provides a surface for the attachment of the various kinds of the muscles।